مسائل کے حل کے لیے غیر روایتی سوچ اپنانا ہوگی. جزا اور سزا کے بغیر کوئی بھی سسٹم کامیاب نہیں ہو سکتا. سرکاری اداروں کی کارکردگی اور گورننس میں کارکردگی جانچنے کا ٹھوس نظام وضع کیا ہے وزیر اعظم عمران خان. ملکی تاریخ میں پہلی بار کارکردگی کی بنیاد پر وفاقی وزارتوں کی رینکنگ جاری. مراد سعید کی قیادت میں وزارت مواصلات سب سے آگے. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا دوسرا اور تخفیف غربت کا تیسرا نمبر. بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی 10 وزارتوں کے لیے تعریفی اسناد. وفاقی حکومت کا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافے کا اعلان. اطلاق 1 مارچ سے ہوگا. ٹائم سکیل پروموشن کے لیے بھی سمری تیار. معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے. آمدنیوں میں مزید اضافہ ہوگا. وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین. منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر 18 فروری کو فرد جرم عائد ہوگی. جج اسپیشل سینٹرل کورٹ لاہور اعجاز حسن اوان کا فیصلہ. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں 8 دن کی توسیع. آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم. شہباز شریف کے منشی کے اکاؤنٹ سے 8 کروڑ نکلے. چوری اور لوٹ مار کرنے والے پھر اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ احتساب سے خوف زدہ ہیں. عمران خان کا ایجنڈا صرف پاکستان کا استحکام ہے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود. دھیلے کی کرپشن نہ کرنے کے دعوے داروں نے کھربوں کی لوٹ مار کی. لندن فلیٹس کی خریداری کے آج تک ثبوت پیش نہیں کیے گئے. اپوزیشن حکومت کو نہیں خود کو گرائے گی. وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب. صوبہ جنوبی پنجاب کے لیے تحریک انصاف کی ایک بار پھر اپوزیشن کو ساتھ چلنے کی دعوت. وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کو دوبارہ خط. اتفاق رائے سے قانون سازی چاہتے ہیں. یوسف رضا گیلانی صوبے کے حق میں ہیں تو ووٹ دیں. شاہ محمود قریشی. 1 کروڑ 40 ارب روپے لاگت کے ہاؤسنگ منصوبے منظور کیے جا چکے. مالیاتی اداروں میں مخصوص ذہنیت کو تبدیل کرنا بڑا چیلنج تھا. ٹارگیٹڈ سبسڈی سے متوسط اور کم آمدن طبقے کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا. وزیر اعظم عمران خان. فنی تربیت اور اعلیٰ تعلیم کے اداروں کو انسانی وسائل کی ترقی پر توجہ دینا ہوگی. تعلیمی ادارے آن لائن تعلیم کے فروغ کے لیے آئی ٹی انفراسٹرکچر پر سرمایہ کاری کریں. صدر ڈاکٹر عارف علوی. بھارت میں زعفرانی مفلر والے ٹولے کی انتہا پسندانہ سرگرمیاں. بھارتی سپریم کورٹ نے حجاب کے معاملے کی سماعت سے انکار کر دیا. حجاب پر پابندی کے خلاف نئی دلی، کولکتہ، حیدرآباد اور دیگر شہروں میں احتجاجی مظاہرے. بھارتی مظالم کے باوجود نہتے کشمیریوں کے حوصلے بلند. حق خود ارادیت کی جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم. حریت رہنما محمد مقبول بٹ کے یوم شہادت پر کل مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال کی جائے گی. روس اور بیلاروس کی مشترکہ فوجی مشقیں شروع. 20 فروری تک جاری رہیں گی. جدید فضائی دفاعی سسٹم اور Su-35 جنگی طیارے بھی مشقوں کا حصہ. امریکہ اور نیٹو کا تشویش کا اظہار. پاکستان میں 16 کروڑ 60 لاکھ شہریوں کو ویکسین لگائی جا چکی. مثبت کیسز کی شرح 7.1% ریکارڈ. NCOC اور انتظامیہ کی اسلام آباد میں کارروائیاں. ویکسین نہ لگوانے والے ٹرانسپورٹرز پر جرمانے عائد. مختلف ہوٹل اور ریسٹورانٹ سیل کر دیے. PSL نشریاتی حقوق سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری. PTV اور ARY کا جوائنٹ وینچر قانون کے مطابق اور عوامی مفاد میں ہے. درخواست گزار ٹھوس بنیاد فراہم نہیں کر سکے. A very good shot, hard down the ground. That's for the second over. Oh, that's away. Lovely shot. Beautiful timing. My goodness. Here's a man in. لاہور میں میدان سج گیا. PSL کے دوسرے مرحلے میں پشاور زلمی کے خلاف ملتان سلطانز کی بیٹنگ جاری. ایون PTV سپورٹس HD پر براہ راست. 4 runs. It's close to 9. Oh, that is. چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ مکمل. نادر مگسی کی پہلی پوزیشن. مقررہ فاصلہ 1 منٹ 6 سیکنڈ میں طے کیا. خواتین میں ندا واسطی پہلے نمبر پر.
बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स, नॉर्वे 12 मेडल्स के साथ सर फहरिस्त, जर्मनी की दूसरी, अमेरिका की तीसरी पोजीशन। मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। फन मुसव्वरी को बामे उरूज पर पहुंचाने वाले सादिक़ैन की बरसी। सादिक़ैन ने गालिब, इकबाल और फैज़ के अशार को तस्वीरी पैकर भी अता किया। खलाई तहकीक के इदारे नासा की मरीख पर कार्रवाइयाँ, खुदकार गाड़ी ने 245 मीटर का फासला तय कर लिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं नाजिया कमल और मैं हूं शाहिद नसीम। हेडलाइंस आपने जानी, खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं सबको एक बात समझा सकूं कि कम उम्र की शादी माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। अच्छी तालीम और बेहतर सेहत हर बच्चे का बुनियादी हक है जो माँ की सेहत से जुड़ा है। बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा और कम तादादी एक खुशहाल घराने की जामिन है। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि गवर्नेंस का मकसद अवाम की जिंदगियों में बेहतरी लाना है। जज़ा और सज़ा के बगैर कोई भी सिस्टम कामयाब नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह बात इस्लामाबाद में विफाकी वजारतों की कारकर्दगी से मुतल्लिक होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए कही। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करेंगे आगा मसूद खालिद अपनी इस रिपोर्ट में। सज़ा और जज़ा होगी तो इंशाअल्लाह ये जो हमारा बाकी टेन्योर है इसके अंदर मुझे यकीन है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो गवर्नेंस सिस्टम हमारा बहुत बेहतर होगा। इस्लामाबाद में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली 10 विफाकी वजारतों में तारीफी इसनाद तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि सजा और जजा पर मबनी माशरा ही तरक्की करता है और गवर्नेंस का निजाम ऐसन अंदाज में आगे बढ़ सकता है। जब आप कहते हैं ना क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस, उसके अंदर आप बैठ के जब उसको इवेल्युएट करेंगे कि वो क्या क्या चीजें करेंगे, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया और जो वेटेज देनी चाहिए कि पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसकी तरफ कौन सी मिनिस्ट्री अपनी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया से उस तरफ कौन लेके जा सकती है और अपने मुल्क को पैर पे खड़ा करने के लिए हमारी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी, फिर गवर्नेंस सिस्टम का मतलब अवाम की जिंदगी कैसे बेहतर करेगी। गुर्बत जो हमारा असल चैलेंज है कि लोगों को गुर्बत से निकालना, वो मिनिस्ट्री क्या कदम उठा रही है, इंसेंटिव सबसे ज्यादा दें कि आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस लेके आए। वजीर आजम ने कहा कि वजारतें अपने मुकर्ररा अहदाफ के हसूल के लिए कारकर्दगी को बेहतर बनाने के अलावा कौमी तशख्खुस और माशी इन्हसारी की मंजिल के हसूल पर खसूसी तवज्जो मरकूज करें। माविन खसूसी शहजाद अरबाब ने कहा कि परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स की बदौलत कारकर्दगी में बेहतरी, अहदाफ की बरवक्त तकमील, अवामी मसाइल के हल, मौसर पॉलिसी साजी और गुड गवर्नेंस के लिए दरकार डेटा मुरतब करने में मदद मिलती है। इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान ने बेहतरीन कारकर्दगी की हामिल 10 विफाकी वजारतों में तारीफी इसनाद तकसीम की। नुमाया कारकर्दगी के हवाले से मवासलात पहले, मनसूबा बंदी और तरक्की दूसरे, जबकि गुर्बत के खात्मे से मुतल्लिक वजारत तीसरे नंबर पर रही। तारीफी इसनाद और बोनस हासिल करने वाली दीगर वजारतों में तालीम, इंसानी हकूक, सनत व पैदावार, कौमी सलामती डिवीजन, तिजारत, दाखिला और कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ शामिल हैं। वजारतों की कारकर्दगी का मेयार जांचने के लिए गुज़िश्ता 2 साल के दौरान 1090 अहदाफ मुकर्रर किए गए थे, जिनमें से 426 इक़दामात मुकम्मल किए जा चुके हैं और दीगर अहदाफ रवां माली साल के इख्तिताम तक हासिल कर लिए जाएंगे। अवाम को उनकी दहलीज पर सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। करप्शन से पाक और इंसाफ पर मबनी माशरे का क़याम वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन का महवर है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली 10 वजारतों को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि हम इस बार इसलिए जगह नहीं बना सके कि कारकर्दगी इन मंसूबों पर अमल दरामद से जांची जाती है जो वजारत वज़ीर आज़म ऑफिस को देती है।
انہوں نے کہا کہ ہم نے وزارت کے کچھ منصوبوں میں رد و بدل کیا ہے جو میرے خیال میں اگلی دفعہ زیادہ سود مند ہوں گے۔ اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے ملاقات کی ہے۔ ایوان صدر میں ہونے والی اس ملاقات میں مختلف امور زیر غور آئے۔ سینیٹر ولید اقبال بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ دوبارہ سرد جنگ کا دور نہیں چاہتے۔ امریکہ اور چین کے درمیان رقابت کی بجائے صحت مند مقابلے سے پوری دنیا کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان انسانی المیے کے دہانے پر ہے، عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں اسد یار خان۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کرپشن کے باعث ملک تباہ ہوتے ہیں۔ میری ترجیح اپنے عوام کی ترقی و خوشحالی ہے۔ I decided to go into politics because I realized that our country was being destroyed by crooked politicians. My manifesto was based on two principles. One was rule of law, and second was to make Pakistan a welfare state. My government's emphasis is on geoeconomics. We want to build our economy now and to lift our people out of poverty, and we see CPEC and Gwadar as a great opportunity for our geoeconomics. وزیر اعظم نے کہا کہ میں پہلے دن سے افغانستان میں فوجی حل کا مخالف تھا۔ افغانستان پر عائد پابندیوں سے سنگین انسانی بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ In the US, somehow they cannot distinguish between the Taliban government and the 40 million people of Afghanistan. And the danger is that in trying to punish by sanctioning the Taliban government, there is a huge humanitarian crisis unfolding in Afghanistan. And this is what should be avoided. A country that budget depended 75% on foreign aid, when you cut off the aid and then sanction the country, this could be the biggest man-made humanitarian crisis. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت اپنی ہی لگائی ہوئی نفرت کی آگ میں جل رہا ہے۔ اپنی پالیسیوں کے باعث اسے داخلی طور پر اور ہمسایوں کے ساتھ مسائل کا سامنا ہے۔ So what is happening in India is this government which only thinks that India belongs to Hindus. And in doing so, it is basically marginalizing something like 600-700 million human beings who are now considered second-class citizens, including the 200 million Muslims in India. So it is a terrible situation for India. And that's why India is having problems from within, and it is having problems with its neighbors. چین اور امریکہ کے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا ایک اور سرد جنگ نہیں چاہتی۔ ہم 70 کی دہائی کی طرز پر دونوں ملکوں کو قریب لانے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ اور ناظرین، سرکاری ملازمین کو مہنگائی سے ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت نے 1 مارچ سے تنخواہوں میں 15% اضافے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ٹائم سکیل پروموشن کے لیے سمری کی تیاری بھی ریلیف فراہم کرنے کے سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کہتے ہیں کہ معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے، انشاءاللہ 1 سال میں آمدنیوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ کرونا وبا سے سپلائی متاثر ہونے کے بعد عالمی سطح پر بدترین مہنگائی سے پاکستان بھی متاثر ہوا ہے۔ عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کی خریداری پر سبسڈی دینے کے بعد اب 19 گریڈ تک کے ملازمین کی جاری بنیادی تنخواہوں میں بھی 15% اضافے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ 15% ڈسپیرٹی دیا۔ میں عمران خان کا اس بار شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو لوگ طویل عرصے سے 10 سال 14 سال ایک ہی گریڈ میں اگر ان کو اپ گریڈیشن یا ٹائم اسکیل مل جاتا ہے تو بہت اچھا اقدام ہے یہ۔ صوبوں کو بھی اپنے فنڈ سے گریڈ 19 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ فائنانس ڈویژن کی جانب سے ٹائم اسکیل پروموشن کے لیے ایک سمری بھی تیار کی گئی ہے تاکہ ایک ہی گریڈ میں طویل عرصے سے پھنسے ملازمین کی مشکلات میں کمی لائی جا سکے۔ ہم اس اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور مطمئن اس اعلان سے ٹائم سکیل پروموشن کے کیسز پینڈنگ تھے اور ان کی جو سمری منسٹری آف فائنانس نے تیار کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں بہت اچھا اقدام ہے تاکہ جو ملازمین ڈسہارٹ ہوئے ہیں ان کو بھی کوئی خوشی کا موقع مل سکے۔ پے سکیل جو ہے وہ بھی سکیل جو ریوائز کیا جائیں کیونکہ وہ تو وفاق نے کرنے ہیں پھر صوبوں نے کرنے ہیں۔ کمزور اور درمیانے طبقے کی فلاح و بہبود ریاست مدینہ کے حقیقی تصور کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ حسن طارق بٹ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ منی لانڈرنگ کیس میں لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر 18 فروری کو فرد جرم عائد کرے گی۔
اسپیشل سینٹرل جج اعجاز حسن اوان نے اپنے مختصر فیصلے میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں 8 روز کی توسیع کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم دیا۔ FIA دونوں ملزمان کے خلاف رمضان شوگر ملز کے ذریعے 17 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا چالان پہلے ہی جمع کرا چکا ہے۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے کہا ہے کہ دھیلے کی کرپشن نہ کرنے کے دعوے داروں نے کھربوں کی لوٹ مار کی۔ لندن فلیٹس کی خریداری کے آج تک ثبوت پیش نہیں کیے گئے۔ اسلام آباد میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ملک کو لوٹنے والوں کو قانون سے نہیں بھاگنے دیں گے۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا کہ آئے روز بیان بدلنا مریم صفدر کا وتیرہ ہے۔ 2011 میں کہا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، جسے اپنے ہی بھائی نے ٹی وی پر بیٹھ کر بے نقاب کر دیا۔ مریم صفدر کا جو 2011 کا جو جھوٹ تھا، آپ ہی کے بھائی حسین نواز نے بے نقاب کیا۔ تمام تر کہانیاں سنانے کے بعد یہ پتا چلا کہ ان کے پاس ایک قطری خط ہے، اور جو قطری خط موجود تھا اس قطری خط کے حوالے سے وہ قطری بھی اس خط کو جو ہے وہ آن کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ تیار نہیں تھا۔ انہیں لگا کہ جو ہم جھوٹ بولیں گے وہ جھوٹ جو ہے وہ ہمارا مانا جائے گا، لیکن اس بار عمران خان جو کھڑے تھے ان کے راستے میں، جو قوم کا لوٹے ہوئے پیسے کی حفاظت کے لیے اس کے اوپر پیرا دے رہے تھے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ ہمیشہ کی طرح اب بھی یہ عدالتی سسٹم میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ چوروں کے ٹولے میں سے ایک کی اسلام آباد ہائی کورٹ اور دوسرے کی اینٹی کرپشن عدالت میں سماعت تھی۔ یہ لوگ جتنا مرضی ادھر ادھر بھاگ لیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ الٹیمیٹلی نون لیگ کی سیاست میں آڈیوز بھی آ گئیں، ویڈیوز بھی آ گئیں، تمام بلیک میلنگ کے باوجود جا کر آج کل انہوں نے زرداری کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب آ کر جو ہے وہ آؤ، لوٹ مار آپ نے بھی کی ہے، لوٹ مار ہم نے بھی کی ہے، آؤ مل کے جو ہے وہ اس لوٹ مار سے کسی طرح جو ہے وہ ہم NRO حاصل کریں۔ وہ NRO تو خیر ان کو نہیں ملنا۔ وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ عمران خان کی ساری زندگی عوام کے سامنے ہے اور دوسری جانب یہ مافیا۔ عمران خان نے عدالت میں اپنی 40 سالہ زندگی کا حساب دیا، حالانکہ وہ کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہے۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر تعلیم اور صدر PTI پنجاب شفقت محمود نے کہا ہے کہ قومی دولت لوٹنے والے احتساب سے خوفزدہ ہیں۔ عمران خان کا ایجنڈا صرف پاکستان کا استحکام ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں یاسر حسین۔ وفاقی وزیر تعلیم اور صدر PTI پنجاب شفقت محمود نے شکرگڑھ میں PTI ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اجتماعی قومی مقاصد کے لیے ہم ملک کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان عوامی رابطہ مہم شروع کر رہے ہیں۔ پارٹی میں اتحاد اور مل کر چلنے سے کلین سویپ کر سکتے ہیں۔ 70 سال کا بگاڑ درست کرنے کے لیے وقت لگے گا۔ شہباز شریف کے منشی کے اکاؤنٹ چوں 800 کروڑ روپیہ نکلیا وہ اکاؤنٹ چ، کدی کسی پاپڑ والے کے اکاؤنٹ چوں 200 400 500 کروڑ نکل آندا، کدی کسی فلودے والے کے اکاؤنٹ چ نکل آندا۔ وہ جڑا بیٹھا اتنے انگلینڈ جا کے بہت بیمار ہے بیچارہ، روز سرٹیفکیٹ دینا ہے، تصویراں آدیاں تین منزلہ سیڑھیاں نہیں چڑھتا پیا ہے۔ ورکرز کنونشن سے پارلیمانی سیکریٹری وجیہہ اکرم اور مقامی پارٹی قیادت نے بھی خطاب کیا۔ ناروال میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر شفقت محمود نے کہا کہ قوم لٹیروں کو دیکھ چکی ہے، اس لیے عوام آئندہ بھی PTI کو منتخب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت کو اپنی جیبیں بھرنے کا شوق نہیں، ہم پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ اسلامی فلاحی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ اسی پاکستان میں عوام واسطے کچھ کرنا، تحریک انصاف کا اور ہمارے قائد کا یہ ایمان ہے کہ جب تک انصاف سب کے لیے برابر نہیں ہوگا یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ شفقت محمود نے کہا کہ اپوزیشن کی افواہیں دری رہ جائیں گی اور حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ تحریک انصاف نے صوبہ جنوبی پنجاب کے لیے اپوزیشن کو ایک بار پھر ساتھ چلنے کی دعوت دی ہے۔ وائس چیئرمین PTI شاہ محمود قریشی نے اس سلسلے میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو خط لکھا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اس اہم معاملے پر اتفاق رائے سے قانون سازی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی جنوبی پنجاب صوبہ چاہتے ہیں تو حق میں ووٹ دیں۔ مجھے ان کے خط کا دونوں کا جواب نہیں آیا، میں نے آج ان کو دوبارہ خط لکھا ہے اور ان سے میں نے گزارش کی ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا اس کی تصدیق
UNDP की लेटेस्ट रिपोर्ट ने कर दी है। रिपोर्ट कह रही है कि जनूबी पंजाब का सबसे डिप्राइव्ड पसमानदा रीजन है और उन्होंने स्टेटिस्टिक्स के साथ साबित किया है कि जनूबी पंजाब किस तरह डिप्राइव्ड है और क्यों डिप्राइव्ड है। खुसूसी इक्तिसादी जोन्स में सरमाकारी के जरिए सनती अमल की तरक्की हुकूमत की अहम तरजीह है। तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ऐसे मुश्तरका फ्रेमवर्क अपनाएं जिससे सरमाकारों के मसाइल कम से कम वक्त में हल हों। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि मुल्क में SME के शोबे की तरक्की के लिए सहूलतें फराहम की जाएँ। उन्होंने कहा कि तमाम बड़े शोबे खुसूसन टेक्सटाइल और SME के लिए 5 साला बरामदी पॉलिसी का इजरा किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि आदाद-ओ-शुमार वाज़े करते हैं कि हाउसिंग पॉलिसी के बेहतरीन नताइज बरामद हो रहे हैं। इस्लामाबाद में कौमी राब्ता कमेटी हाउसिंग और तामीरात के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत 1.4 खरब मालियत के 70,000 हाउसिंग मनसूबों की मंजूरी दे चुकी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद नवीद असर। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मंसूबों से 7.3 खरब की मुआशी सरगर्मियां होंगी और 12 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि 80,000 में से 35,420 से ज्यादा दरख्वास्तों पर 1 खरब 30 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि अब तक 13,407 दरख्वास्त दहिंदगान को 46 अरब रुपए फराहम किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक हफ्ते के दौरान 7 अरब रुपए की दरख्वास्तें वसूल होती हैं, जिनमें से 4 अरब की मंजूरी जबकि 2 अरब हफ्तावार फ्राहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुतवसत और कम आमदन तबके को घरों की फ्राहमी के हवाले से संगे मील अबूर किया है। वज़ीर आज़म का कहना था कि मालियाती इदारों में खास किस्म की जहनीत को तब्दील करना सबसे बड़ा चैलेंज था। उन्होंने कहा कि हाउसिंग पॉलिसी का मकसद आम लोगों को कर्जों के हसूल में सहूलत फ्राहम करना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अब तक टारगेटेड सब्सिडी से मुतवसत और कम आमदन तबके को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3 साल में घरों के लिए कर्ज लेने की शरह 148% बढ़ी है और दिसंबर 2022 तक कम कीमत हाउसिंग के लिए 517 अरब रुपए की मुतवक्किल मंजूरी कम आमदन घरों के लिए हुकूमत की जानिब से सहूलत की अक्कास है। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कम लागत घरों के लिए एक माहौल दोस्त जामे मंसूबों पर अमल किया गया है, जिससे ये शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है। फोरक्लोजर कानून को बिल्कुल सही तरीके से लागू किया गया है और सब्सिडी के साथ कम मार्कअप पर 20 साल की तवील मुद्दत के लिए कर्जे दिए जा रहे हैं। कम आमदनी वाली हाउसिंग स्कीमों के लिए 3 लाख रुपए की सब्सिडी और 90% टैक्स माफी की बदौलत निजी शोबे की हौसला अफजाई हुई है और वो स्कीमों की तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। इजलास को दरख्वास्तों की वसूली और कार्रवाई के शफाफ और खुदकार तरीकाकार से मुतल्लिक भी बताया गया कि किस तरह कम और मुतवसत आमदन वाले तबके को सहूलत दी जा रही है। इजलास को 2018 से अब तक कम लागत घरों की तामीर के एदाद शुमार से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने और मजीद बेहतर बनाने की हदायत की। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि फ़नी तरबियत और आला तालीम के इदारों को इंसानी वसाइल की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। इस्लामाबाद में नमर यूनिवर्सिटी से मुतालिक ब्रीफिंग के मौके पर सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान को हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की कमी का सामना है। तालीमी और बाहुनर इंसानी वसाइल की ज़रूरियात पूरा करने के लिए कम्यूनिटी कॉलेज की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दुनिया ऑनलाइन तालीम की तरफ बढ़ चुकी है। तालीमी इदारे ऑनलाइन तालीम के फ़रोग़ के लिए IT इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरमायाकारी करें। सदर ममलकत ने कहा कि नमर यूनिवर्सिटी मालूम होती ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए भी इक़दामात करे। यूनिवर्सिटी के रेक्टर रिटायर्ड मेजर जनरल मोहम्मद जाफिर ने सदर ममलकत को आला तालीम के फ़रोग़ में इदारे के किरदार के बारे में ब्रीफ किया। नाज़रीन, दिफ़ाए वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले बहादुर सपूतों को पूरी कौम का खिराज अक़ीदत। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुख्तलिफ वाक़यात में शहीद होने वाले जवानों को लवाहिकीन को टेलीफोन किया और शुहदा की अजीम कुर्बानी को सराहते हुए कहा कि पूरी कौम उनकी मकरूज़ है। सदर ममलकत ने 2 फरवरी को नोशकी में शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद बिलाल खालिद, लांस नायक इनातुल्लाह और सिपाही वहीद अली के वर्सा से टेलीफोन पर ताज़ियत की और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। डॉक्टर आरिफ अलवी ने सिपाही साजिद अली, नाहिद इकबाल, मोहम्मद ज़ियाउल्लाह खान, मोहम्मद समीर और अजब नूर के लवाहिकीन को भी टेलीफोन किया और शहदा की जुर्रत और बहादुरी को सराहा। सदर ममलकत ने केश में शहीद होने वाले नायक वकास अहमद, सिपाही ज़फ़र इकबाल, नवीद गफूर, अदनान मुस्तफ़ा, जैन अली, मोहम्मद शहजाद हुसैन, फरहान एहसन तारिक, महबूब अली, अरसलान मंजूर और मोहम्मद यासिर को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि पूरी कौम को अपने शहदा की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से ब्रुनाई, अल्जीरिया, यूनान, मोरितानिया और अल्बानिया के नामजद सफ़ीरों ने मुलाकात की और अपनी असनाद सिफारत पेश की। नामजद सफ़ीरों ने सदर ममलिकत से इलहदा मुलाकात भी की।
सदर ममलिकत ने मुआशी, तजारती और सकाफती ताउन को वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक पुरकशिश कारोबारी और सरमायाकारी की मंजिल के तौर पर उभर रहा है। मुआशी तरक्की के लिए अपने मुनफरिद जियो इकनॉमिक महल वकू को बुरोकार लाने पर तवज्जो दे रहे हैं। सदर ममलिकत ने कहा कि दोस्त मुल्कों के साथ वसीउल बुनियाद बामायनी ताउन के लिए इदारा जाती फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के बारे में आगाह करते हुए कहा कि आलमी बिरादरी सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक तनाज़े कश्मीर को हल करने में मदद करे। ज़ाफ़रानी मफलर वाले टोले के इंतहा पसंदाना सरगर्मियों के खिलाफ भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। रियासत कर्नाटक में तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज में शिद्दत आ गई है। नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और दीगर शहरों में होने वाले मुजाहिरों में इंतहा पसंदाना वाक़यात की शदीद मज़म्मत की गई। उन्होंने कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी के इक़दाम को मुतासिबाना करार देते हुए कहा है कि इससे मुसलमानों के हौसले अभी पस्त नहीं हुए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब के मामले पर दायर दरख्वास्त की समाअत से इनकार करते हुए कहा है कि इस मामले को हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। एडवोकेट कपिल सिब्बल की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ये मामला अब पूरे मुल्क में फैल रहा है। इम्तहानात होने वाले हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस अहम मामले की समाअत करे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मज़ीद समाअत की तारीख देने से भी इनकार कर दिया है। और नाज़रीन, भारतीय हुक्मरान जमात के एक और हवास बाख्ता वज़ीर ने इंतहाई मुतनाज़ा बयान जारी कर दिया है। कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी वज़ीर MP रेणुकाचार्य का कहना है कि बहुत से जिनसी हरासगी के वाक़यात ख़वातीन के कपड़े पहनने के इंतखाब की वजह से होते हैं और ख़वातीन अपने कपड़ों से मर्दों को अपनी जानिब मुतवज्जा करती हैं। कांग्रेस की रुकन असम्बली लक्ष्मी हिवालकर का कहना है कि बीजेपी वज़ीर अपने दिमाग के साथ साथ ज़ुबान पर भी काबू खो चुके हैं। और अब बात करेंगे अज़्म व हिम्मत की मिसाल मुस्कान खान की। आपकी जुर्रत और इस्तिकामत को सलाम। भारतीय रियासत कर्नाटक में तने तनहा इंतहा पसंदों का डट कर मुकाबला करने वाली बाहिजाब तालिबा मुस्कान का कहना है कि जब हिंदू इंतहा पसंदों के एक जत्थे ने उन पर धावा बोल दिया तो वो अकेले होने के बावजूद हरगिज परेशान नहीं थी, बल्कि उन्होंने बहादुरी के साथ डट कर इंतहा पसंद गिरोह का मुकाबला किया। Well, we saw that video of that very brave young girl, Bibi Muskan Khan. You were alone over there in this video. Were you not worried when you chose to confront these bullies around you? Sir, I was not worried. Actually, what happened is I was just for to submit the assignment. That's why I entered the college and they were not allowing me to go inside just because I was carrying the burqa. Yeah. So they were not allowing me. Somehow I came inside. After that, they start shouting and start giving the slogan as Jai Shri Ram. Then I started to scream as Allahu Akbar. भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में इंतखाबात के पहले मरहले का आगाज़ हो गया है। एक माह पर मुहित और 7 मराहिल के दौरान होने वाली वोटिंग में 15 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। तफसील बता रहे हैं वक़ार हैदर। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में इंतखाबात के पहले मरहले का आगाज हो गया। 403 नशिस्तों पर 15 करोड़ से जायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पहले मरहले के तहत 11 जिला की 58 सीटों पर वोटिंग आज से शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में अब तक बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। बीजेपी की क़यादत जर्द शाल ओढ़े मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव इस वक्त बीजेपी के सबसे बड़े मुखालिफ बनकर मैदान में हैं। कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम प्रियंका गांधी चला रही हैं, जिनकी मुहिम खवातीन वोटर्स के गिर्द घूम रही है। प्रियंका गांधी रेप का शिकार खवातीन और पुलिस के मजालिम का शिकार खानदानों पर तवज्जो मरकूज किए है। बहन जी के नाम से मशहूर बहुजन समाज पार्टी की मायावती दल्लत वोट थामे मैदान में है। यूपी से इंतखाबात जीतने वाली बीजेपी गुज़श्ता इंतखाबात के वादे पूरे न करने के बायस इस बार मुसलमान और पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चला रही है। इस रियासत में तकरीबन 23% मुसलमान आबाद हैं। गुज़श्ता इंतखाबात में मुसलमानों का वोट तकसीम हो गया था, लेकिन इस बार तकसीम की कोई गुंजाइश नहीं है। रियासत के 60 असम्बली हलके ऐसे हैं जहां मुसलमान इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज हो सकते हैं या मुसलमान नुमाइंदे जीत हासिल कर सकते हैं। सियासी अहमियत के बावजूद यूपी सबसे कम तरक्की याफ्ता रियासतों में से एक है। गुर्बत इंडेक्स के मुताबिक रियासत की 37.79% आबादी गुर्बत की जिंदगी गुजार रही है। 44% से ज्यादा ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार है और लाखों लोगों को अब भी बैतुल खला तक रसाई नहीं है।
वकार हैदर, PTV न्यूज़। नाज़रीन, खबरनामे में कुछ बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं सबको एक बात समझा सकूं कि कम उम्री की शादी माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। अच्छी तालीम और बेहतर सेहत हर बच्चे का बुनियादी हक है जो माँ की सेहत से जुड़ा है। बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा और कम तादादी एक खुशहाल घराने की जामिन है। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे मकबूजा वादी कश्मीर का। मारूफ आज़ादी पसंद रहनुमा मोहम्मद मकबूल बट की शहादत की 38वीं बरसी के मौके पर कल मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हड़ताल की कॉल हुर्रियत चेयरमैन मुसरत आलम बट, मीर वाइस उमर फारूक और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने दी है। भारत ने मोहम्मद मकबूल बट को 11 फरवरी 1984 को नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी देकर उनका जसद खाकी जेल के अहाते में ही दफन कर दिया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मौलवी बशीर अहमद इरफानी ने श्रीनगर से एक बयान में कहा है कि कश्मीरी अवाम आज़ादी के पैकर शहीद मोहम्मद मकबूल बट की अजीम कुर्बानियों के मकरूज़ हैं और उनके मुकद्दस मिशन को उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का अहद करते हैं। हुर्रियत रहनुमाओं जावेद अहमद मीर और अब्दुल समद इनकलाबी ने कहा कि शहदा भारत के खिलाफ कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी का हकीकी असासा हैं। श्रीनगर समेत मकबूजा वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में पोस्टर्स आवेज़ा किए गए जिनमें लोगों पर जोर दिया गया कि वो कल नवाज़ जुमा के बाद मोहम्मद मकबूल बट, मोहम्मद अफजल गोरू और दीगर कश्मीरी शहदा के लिए दुआ या इज्तिमात का इनेकाद करें। यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ लंदन ने मारूफ कश्मीरी सहाफ़ी फहद शाह की गिरफ्तारी पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। यूनिवर्सिटी ने उनकी गिरफ्तारी को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार देते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। नाज़रीन, भारतीय तसल्लुत से निजात के लिए हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में मसरूफ़ कश्मीरियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए इस्लामाबाद में तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने इस मौके पर कहा कि अक़लियतों पर बढ़ते मज़ालिम से भारत की नाम नहाद जमहूरियत का चेहरा दुनिया के सामने अयां हो गया है। तफसील बता रहे हैं ज़ीशान भट्टी। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारतीय काबज अफवाज के मज़ालिम को उजागर करने के लिए वज़ारत ख़ारिजा में तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत में अक़लियतों पर जारी मज़ालिम पर मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। उन्होंने कहा कि अवाम फ़नून लतीफ़ा के जरिए हकीकत को जाहिर करें तो इसका बड़ा तासुर कायम होता है। This exhibition depicts how humanity is suffering. One understands, for different reasons, at times, people who do understand what the reality is choose to keep quiet, but truth will surface. तकरीब से खिताब के दौरान चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार अफरीदी और पार्लिमानी सेक्रेटरी हारजा अंदलीब अब्बास का कहना था कि कश्मीरियों को हक खुद इरादियत का मुकम्मल इख्तियार मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है कि कश्मीरियों के इंसानी हकूक को यकीनी बनाया जाए। तकरीब के इख्तिताम पर वज़ीर हारजा ने दीगर मेहमानों के हमरा तस्वीरी नुमाइश का जायजा भी लिया। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। तन तनहा बाहिजाब लड़की मुस्कान ने बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम की है जो सदियों तक याद रखी जाएगी। हिजाब का दिफा करने वाली इस निहत्ती लड़की को पाकिस्तान से भी खवातीन ने सलाम पेश किया है। रिपोर्ट करेंगी मरियम मलिक। हिंदू इंतहा पसंदों का जत्था था और वो निहत्ती लड़की। फिर अल्लाह अकबर का नारा गूंजा और दुनिया ने इस्लाम को सुरखरू होते देखा। भारतीय रियासत कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब पहने मुस्कान जब अपनी स्कूटी से उतरी तो सामने केसरी शौले लहराते हिंदू गुंडे गुर्राते उसकी तरफ बढ़ने लगे। मुस्कान जरा न घबराई। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक ऐसा अज़्म और वलवला जिसने सैकड़ों इंतहा पसंद नौजवानों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मुस्कान ने हिंदू नौजवानों के नारों का जवाब अल्लाह अकबर से दिया तो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया तक नारे तकबीर की आवाज बुलंद हो गई। मुस्लिम उम्मा की बहादुर बेटी को पूरी दुनिया से खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। हिजाब के हक में भी आवाजें उठ रही हैं। उन्होंने अपने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, इस वजह से मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं एक लड़की होके और फिर उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। इंडिया में जो यूनिवर्सिटी में
उन इंतहा पसंदों के सामने डट के नारा तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाया, तो ये पूरी दुनिया के उम्मत मुस्लिमा के लिए फ़ख्र का मकाम है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ उन्हें इस चीज़ के कि उन्होंने इस्लाम की चीज़ को कायम किया और लेडीज़ की जो इज़्ज़त है उसके हवाले से वो बाहर निकली। दूसरी जानिब उलमाए कराम ने 11 फरवरी को पूरे मुल्क में भारतीय हुकूमत के हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ यौम यकजहती मनाने का ऐलान भी कर रखा है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ और पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने मुलाकात में अफगानिस्तान में इंसानी बहरान को रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी के ताउन की अहमियत पर इत्तफाक किया है। इस मौके पर क्रिश्चियन टर्नर ने बरतानवी हुकूमत की जानिब से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यूक्रेन के बहरान के हल के लिए कोशिशों के साथ रूस और बेलारूस की मुश्तरका फौजी मशकें शुरू हो गई हैं, जबकि रूसी वजारत दिफा के मुताबिक इन मशकों का मकसद दोनों मुल्कों की फौजी ताकत की जांच पड़ताल, बैरूनी हमले के सद्देबाब, इंसदादी दहशतगर्दी और सरहदों की हिफाजत के लिए तजर्बात से इस्तेफादा करना है। इत्तेहादी अज़्म के उन्वान से होने वाली ये मशकें 20 फरवरी तक जारी रहेंगी। रूस का जदीद फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम और Su-35 जंगी तैयारे भी इन मशकों का हिस्सा हैं। अमरीका और नेटो ने इन मशकों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस इक़दाम से खित्ते में कशीदगी को हवा देने की कोशिश की जा रही है। उधर अमरीका ने कहा है कि यूक्रेन बहरान के बावजूद इंडो पैसिफिक के इलाके में तवील मुद्दत मौजूदगी बरकरार रखेगा। मेलबर्न में खिताब करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि रवां सदी इंडो पैसिफिक इलाके के हवाले से अहम है और इस खित्ते के वाक़यात पूरी दुनिया को मुतासिर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ हमारी मौजूदगी ज़रूरी है। PTV और ARY का जॉइंट वेंचर कानून के मुताबिक दुरुस्त और अवामी मफाद में है। लाहौर हाई कोर्ट ने 15 सफ़हात पर मुश्तमिल PSL मीडिया राइट्स केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने करार दिया कि रिकॉर्ड से मालूम हुआ कि PTV ने बिडिंग के लिए तमाम शराइत पर अमल किया। छपवाया गया इश्तिहार अवाम के लिए काफ़ी था। अदालत ने जियो और ब्लिट्स की जानिब से PTV और ARY जॉइंट वेंचर के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करते हुए करार दिया कि दोनों दरखास्त गुजार ऐसी बुनियाद फराहम न कर सके जिसकी बिना पर इस मामले में मुदाखलत की जाए। रिकॉर्ड के मुताबिक 4 कंपनियों ने PTV की बिडिंग में हिस्सा लिया था, लिहाजा जियो की दरखास्त दायर करना हक बजानिब नहीं और ARY और PTV के जॉइंट वेंचर को कलअदम करार देना नाइंसाफी होगी। खेलों से फिल वक्त इतना ही, अभी आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। बहुत शुक्रिया अनीस। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली 10 वजारतों में वजारत मवासलात पहले नंबर पर रही है, जबकि वफाकी वजीर मुराद सईद ने अनथक मेहनत से माजी में गैर फाल रहने वाले शुबों में जान डाल दी। मुराद सईद की वजारत मवासलात नंबर 1। मवासलात के वफाकी वजीर मुराद सईद PTI हुकूमत का रोशन चेहरा लेकर उभरे हैं। उन्होंने अनथक मेहनत से माजी में गैर फाल रहने वाले शोबों में जान डाल दी। बेहतरीन कारकर्दगी की हामिल वजारतों में इनकी वजारत ने टॉप किया है। वफाकी वजीर मुराद सईद ने मवासलात की वजारत मिलने के बाद दिन रात एक कर दिया। NHA में 1753 किलोमीटर सड़कों पर काम मुकम्मल किया। वजारत मवासलात ने 87 अरब का रेवेन्यू बढ़ाया और 22 अरब की रिकवरी की। मुराद सईद पाकिस्तान पोस्ट में भी इनकलाब लाए, खसारा खत्म करके इदारे को मुनाफा बख्श बना दिया। पाकिस्तान पोस्ट के महसूलात 29 से बढ़कर 46 अरब तक पहुंच गए। निजी कोरियर कंपनीज के मुकाबले में पाकिस्तान पोस्ट भी तेज तरीन की दौड़ में शामिल हो गया। पाकिस्तान पोस्ट ने नेशनल और इंटरनेशनल डिलीवरी को कम दामों में पहुंचाने के अमल को यकीनी बनाया। कोयटा, कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पासपोर्ट डिलीवर करने की सहूलत का आगाज किया। वफाकी वजीर मुराद सईद की कारकर्दगी काबिल फख्र है, जो वजीर आजम के विजन की रोशनी में मसरूफ अमल है। वजारत मवासलात में आला कारकर्दगी के सिले में मुराद सईद ने वजीर आजम इमरान खान से नंबर 1 वजीर का सर्टिफिकेट हासिल किया। रुख करेंगे शहर कायद का, जहां ग्रीन लाइन बस से घंटों का सफर मिनटों में तय होने लगा। सिर्फ एक माह में 11 लाख मुसाफिर इस सर्विस से फायदा उठा चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ीशान अहमद खान। शहर कायद के बासियों के लिए दौरे जदीद की सहूलतों से आरास्ता
ग्रीन लाइन बस सर्विस कामयाबी से जारी है। तर्जुमान ग्रीन लाइन बस सर्विस के मुताबिक 10 जनवरी से 10 फरवरी तक सिर्फ एक माह में 11 लाख मुसाफिर इस बस सर्विस से फायदा उठा चुके हैं, जबकि इन बसों की बर वक्त आमदोरफ्त और मुख्तलिफ स्टेशन पर जदीद टिकटिंग सिस्टम के जरिए मुसाफिरों की रवानगी और आमद का बाज़ाब्ता रिकॉर्ड भी मुरतब किया जा रहा है। अवाम का कहना है कि आला मयार की सफरी सहूलत वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से शहर कायद की बासियों के लिए ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलत देने के अपने वादे की तकमील है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो बड़ा मतलब खराज तहसीन पेश करते हैं कि कराची में जो है इन्होंने ये लाइन शुरू की है, जिससे जो है लोगों को बड़ी सहूलत है। फीमेल के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी है, सेफ है, पीसफुल है और टाइम से पहले हम पहुंच जाते हैं। मैं तो आया हूँ पिशावर से, लेकिन सच बचाओ तो मज़े की है क्योंकि मैं हर साल आता हूँ, लेकिन जब पिछले साल आया था तो यहाँ पर पहुँचने में तकरीबन मेरा घंटा 1.5 घंटा लगता था और अभी तकरीबन 20 मिनट हो गए यहाँ पर पहुँच गया। पढ़ा लिखा स्टाफ है और बहुत अच्छी तरह गाइड करते हैं। बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, बहुत अच्छा सफर। ग्रीन लाइन पर रोजाना 35,000 अफराद सफर करते हैं और वीकेंड्स पर इस तादाद में मजीद इजाफा हो जाता है। इतनी बड़ी आबादी है और उसके लिए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी किसी किस्म की, तो आई एम वेरी हैप्पी। दीगर मामलात में जो क्राइम हुआ करता था बसों में, उससे भी हम सेफ साइड पे हैं। टाइम के लिहाज से भी बहुत अच्छा है, सर्विस के लिहाज से भी बहुत अच्छी है। कोई पॉल्यूशन का भी मसला नहीं है, बहुत मजा आया है। ग्रीन लाइन मंसूबे की डीजल हाइब्रिड बसों की लंबाई 18 मीटर है और ये मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशन है और इस मंसूबे में सिक्योरिटी का भी खुसूसी इंतजाम किया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से शहर कराची को ग्रीन लाइन की सूरत में दिए जाने वाले तोहफा न सिर्फ आवाम में मकबूल तरीन होता जा रहा है, बल्कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से शहरियों के लिए अवलीन तरजीह बनता जा रहा है। जिशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कराची के बाद खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि नौजवान नस्ल हमारा सरमाया है, उन्हें अपने लिए ऐसे मकासद का तयन करना चाहिए जिससे वो मुल्क कौम की बेहतर तरीके से खिदमत कर सके। तफसील नवीद हयात से। असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने कहा है कि नौजवानों को अपनी सोच और इरादों को वसी रखना होगा और वो अपने मकासद के हसूल के लिए अपनी तमाम सलाहियतों को बरोए कार लाएं। उन्होंने कहा कि वो अपने लिए ऐसे शोबों का इंतखाब करें जो उनकी दिलचस्पी के मुताबिक हों, तभी वो इस शोबे में बामे अरूज तक पहुंच सकते हैं। बादजा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि एहतजाज अपोजिशन का आईनी हक है, वो इस हक को इस्तेमाल करें, ताहम इन्हें हमेशा की तरह इस मर्तबा भी नाकामी होगी। एक कॉन्स्टिट्यूशनल उसका राइट है, बिल्कुल वो अपना राइट इस्तेमाल करे, हम वेलकम करेंगे वो अगर वो करना चाहते हैं, लेकिन पहले तरह की मायूसी होगी इंशाल्लाह, जो पहले जब भी हुई है मायूसी हुई है। हुकूमत का काम होता है कि वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे, सिचुएशन मतलब एक माहौल बनाए। हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको पता था कोरोना की वजह से एक बहुत बड़ा अलमिया आया, बहुत मुश्किलात आए, तो अभी वो सिचुएशन इंशाल्लाह हालात बन रहे हैं और नौजवानों के लिए हम वो मौका पैदा कर रहे हैं कि उसको इंशाल्लाह ताला बेस्ट करियर अपनी नौकरी मिलेगी। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात के दौरान स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि अपोजिशन की सियासी इंतशार फैलाने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में अफरा तफरी की सियासत कौमी मफादात में नहीं। उन्होंने सूबे में सेहत कार्ड प्रोग्राम मुतारफ करवाने पर पंजाब हुकूमत की कोशिशों को सराहा और कहा कि ऐसे मंसूबे दुखी इंसानियत की हकीकी खिदमत हैं। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि ओपोजिशन की तरफ से अदम एतमाद का शोशा लॉन्ग मार्च से राह फरार एहतियात करने के लिए छोड़ा गया। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि अराकीन पार्लियामेंट में मौसर कानून साजी से अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐवान में अवामी मसाइल पर बात करने के लिए अराकीन को ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जाते हैं। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और अब कुछ बात करेंगे कोरोना सूरत हाल की। अवाम की बदएहतियाती और लापरवाही से कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा होने लगा है। मुस्बत केसेस की शरह 7.1% हो गई। मुल्क भर में 16 करोड़ 60 लाख शहरियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तफसील जानेंगे राना शहजादुस्सलाम से। मुआवनी खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि मुल्क में 16 करोड़ 60 लाख अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर आप इन 16 करोड़ 60 लाख अफराद में शामिल नहीं हैं तो अपनी वैक्सीनेशन कराएं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस के 3,914 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 7.1% हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना वायरस से मजीद 47 अफराद जांबाक हो गए। कोरोना वायरस से जांबाक होने वालों की मजमूई तादाद 29,648 हो गई है। गुज़श्ता रोज 54,638 अफराद के टेस्ट किए गए। NCOC की टीम ने इस्लामाबाद में ज़िले इंतजामिया के हमरा कराची कंपनी, फैज़ाबाद और आपारा के बास अड्डों में शहरियों की वैक्सीनेशन और कोरोना SOPs पर अमल दरामद का
जायजा लिया। वैक्सीन न लगवाने वाले बस ड्राइवर्स और अमले के अरकान को मौके पर ही भारी जुर्माने किए गए और मज़ाहमत पर मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके अलावा टीम ने शहर के मुख्तलिफ होटलों और रेस्टोरेंट्स का भी मुआयना किया और कोरोना कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने आयद करके उन्हें सील कर दिया गया। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सूबे भर से कोरोना के 971 नए केसेस सामने आए, जबकि 13 हलाकतें हुईं। पंजाब में कोरोना के एक्टिव केसेस की कुल तादाद 14,314 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सूबे भर के तमाम शहरों में कोरोना के मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 4.1% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 7.7%, रावलपिंडी में 3.1%, फैसलाबाद में 9.6%, मुल्तान में 1.6%, जबकि गुजरांवाला में 4.4% रिकॉर्ड की गई। गिलगित बल्तिस्तान में योमिया कोरोना फैलने की शरह 5.94% हो गई है। एक्टिव केसेस की तादाद 329 है। गिलगित बल्तिस्तान में इस वबा से अब तक 11,018 अफराद मुतासर हुए। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का सिलसिला भी भरपूर अंदाज में जारी है। सूबे में मजीद 3,174 अफराद की वैक्सीनेशन की गई है। राना शहजादुस्लाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आलमी सतह पर कोरोना के वार जारी हैं। एक रोज़ के दौरान 24,44,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि वबा से 11,000 से ज़ायद हलाकतें रिकॉर्ड की गईं। अमरीका में सबसे ज़्यादा हलाकतें 2,785 और 2,27,000 केसेस सामने आए हैं। भारत में भी एक दिन में 1,200 से ज़ायद हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। रूस में 700 से ज़ायद अमवात के बाद मजमूई तादाद 3,37,000 हो गई। न्यूजीलैंड और कनाडा में वैक्सीनेशन के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मोहम्मद एहसन भवन और सेक्रेटरी वसीम मुमताज़ की क़यादत में वकला के वफ़द से इस्लामाबाद में मुलाकात की। शुरका ने वकला के लिए हाउसिंग मनसूबे और वकला कॉलोनी के मसाइल के हल से मुतालिक तबादला ख्याल किया। वज़ीर इत्तलात ने हाउसिंग एंड वर्क्स डिपार्टमेंट को वकला कॉलोनी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल हाउसिंग ने वफ़द को रुकावटें जल्द दूर करने की यकीन दहानी कराई। नाज़रीन, मौसम के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। आपको बताएं कि महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। पंजाब के इलाके नारोवाल, खानपुर, बहावल नगर और रहीम यार खान में सुबह के औकात में हल्की धुंध की तवक्को है, जबकि आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लैब -15, कालाम -10, ज़ियारत -9 और स्कर्दू -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खलाई तहकीक के इदारे नासा ने मरीख पर अपनी साइंसी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं और इदारे की जानिब से भेजी गई परसिवरेंस रोवर रेक्सेंसन गाड़ी ने मरीख पर 245 मीटर का तवील तरीन फासला तय किया। जेट प्रोपल्शन लेबॉर्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ऐलान किया है कि परसिवरेंस रोवर का मरीख पर कामयाबी के साथ खुदकार चलाने का अमल जारी है और खुदकार ड्राइविंग फिक्शन की बदौलत हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करने के काबिल हो गई है। प्लूटोनियम ईंधन से चलने वाला परसिवरेंस रोवर 30 जुलाई 2020 को लॉन्च होने के तकरीबन 7 माह बाद 18 फरवरी को मरीख पर उतरा था।